Two small spheres, each having the charge Q, are suspended by insulating threads of length L from a hook. This arrangement is taken in a space where there is no gravitational effect. Then the angle between the two suspensions and the tension in each will be. So it's a very simple question. See, here two small spheres having the same charge, plus Q and plus Q. So they will repel by electric force. Now the arrangement is taken in a space where there is no gravitational field. अब gravitational field नहीं होगा, so they will repel each other with a maximum separation. So with a maximum separation, O is a suspension point. So angle between them for maximum separation becomes 180 degree, and the distance is L, origin to any one sphere. So whole distance it is 2L. So electric force between these two charges Q and Q, Fe is equals to K. It is charges are Q and Q, so it is Q square by 2L square, and the maximum separation, so angle is 180 degree divide of gravity. So right answer is option D. Next question, two equal charges each of Q are placed at the vertices A and B of an equilateral triangle of a length A. The intensity of electric field at a vertices C would be. See the situation which is given. यहाँ पर हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है, and on A and B the charges are kept, it is Q. And we want to determine the electric field at a point C. Now electric field at a point C due to A and due to B. So here we have to find resultant electric field. So at a point C, electric field due to A, it is positive charge, so electric field is on the line joining of C and A, and it is away from the A. So I write it is E in magnitude. Electric field at a point C due to B, it is on the line joining of B and C, and it is away from the B. Again it is E in a magnitude. So resultant electric field, it is in a diagonal direction, and though this angle is 60 degree, the resultant electric field ER is equal to, answer is root 3E, and root 3 electric field due to point charge, formula is KQ by A square. K replaced by 1 upon 4 pi epsilon 0, so root 3Q upon 4 pi epsilon 0 A square. So here option C is correct. Electric field due to A, यहाँ पे था KQ by A square, and electric field due to B also it is KQ by A square is equal to, we take E. तो A और B का जो मैग्नीट्यूड था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम था जो मैंने यहाँ पे E एंड E शो किया हुआ है, और दो इक्वल वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट 3E, एंड E इज इक्वल टू वी हैव KQ बाई A स्क्वायर. सो फाइनल इज ऑप्शन C इज करेक्ट. Next question, the force acting between the two opposite charges of equal magnitude is F. If the 25% of charge is transferred from one to another, the force acting between them will be. तो यहाँ पर दो opposite charges दिए गए हैं. One has positive charge
and another has negative charge. And in the beginning we are considering their magnitudes are Q and Q. So initial force between them and distance उनके बीच में आ रहा है, तो फोर्स F इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, इक्वेशन 1, इनिशियल फोर्स. Now given what 25% charge is transferred from one to another. अगर 25% चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, 25% अगर हम ट्रांसफर कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा? तो आप बोलोगे 100 है, तो सर 100 में से 75 गया तो बचा 75%, एंड 75% मीन्स 3/4 क्यू. अब मैं पूछूंगा यहाँ पे कितना होगा, तो आप बोलोगे पहले 100 था और 25 आ गया तो 125. तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत है. द रीजन इज यहाँ से कौन सा चार्ज निकला? नेगेटिव. यहाँ पे कौन सा है? पॉजिटिव. तो नेगेटिव चार्ज सेकेंड स्फीयर का यहाँ पर आने से ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 25% चार्ज कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 75%. So again it is 3/4 of Q. So now new force. F dash is equals to K 3/4 Q into 3/4 Q by R square. So it is 9/16. So F dash is equals to 9/16 K Q square by R square, and K Q square by R square, it is our F. So answer is 9F/16. So right answer is option D. Question is, a charge small q is placed at the center of the line joining of two equal positive charges capital Q. The system of the three charges will be in equilibrium if small q is equal to. See the situation which is given here. यहाँ पर हमें दो कैपिटल Q चार्जेस दिए हैं, प्लस Q, और बीच में रख दिया स्मॉल q. अब ये स्मॉल q कौन है ये पता नहीं है, तो फाइंड करना पड़ेगा. डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड चार्ज इज r. इसे नाम देते 2, तो हाफ मिड पॉइंट पर रखा है तो होगा r/2. अब यहाँ पे बोला गया है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. सिस्टम इक्विलिब्रियम है, उसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज. रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज 0. कोई भी चार्ज पे आप रिजल्टेंट फोर्स 0 ले सकते हो. मैं ले रहा हूँ थर्ड चार्ज पे, तो आप बोलोगे सर हम फर्स्ट चार्ज पे ले, आपकी मर्जी. आप बोलोगे सर सेकेंड चार्ज पे ले, नहीं ले सकते क्योंकि वो तो फाइंड करना है. तो अब यहाँ पर देखते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे 0 होता है. तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होने का कंडीशन क्या है? फोर्सेस शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड. तो फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट, तो पॉजिटिव रिपेल, तो दूर जाएगा. तो थर्ड 1 से दूर भाग रहा है. फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट, तो ऑब्वियस दूसरा जो फोर्स है फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकेंड, वो F31 के अपोजिट में आना चाहिए. तो ले लेते हैं चलो जल्दी से F32. ओके, बट ये तो पॉजिटिव था, तो Q कैसा होना चाहिए? तो वो अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, तो Q शुड बी नेगेटिव. तो हमारे जो 4 ऑप्शन है उसमें 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है. हमें स्मॉल q फाइंड करना है. हमने यहाँ से ही प्रेडिक्ट कर लिया कि अपना स्मॉल q नेगेटिव होगा, या तो ऑप्शन ए राइट होगा या तो ऑप्शन बी. तो कंडीशन है मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट. तो डायरेक्शन तो हमने अपोजिट सेट कर लिए है, स्मॉल q नेगेटिव है ये भी हमने सोच लिया है. अब सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर करने. तो F31 इक्वल्स टू F32. फोर्स बिटवीन थर्ड एंड 1, थर्ड पे कैपिटल Q डिस्टेंस r, तो K Q स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर. F32 तो यहाँ पे लेंगे K
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड में माइनस साइन नहीं रखेंगे, अपॉन r/2 है तो उसका स्क्वायर, तो r²/4, के गया, कैपिटल क्यू उड़ गया, r² उड़ गया। तो अगर हम स्मॉल क्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आंसर अपना आएगा कैपिटल Q/4। तो Q/4 इज द राइट आंसर, बट हम ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि अपना चार्ज माइनस होना चाहिए, तो फाइनल आंसर इज स्मॉल q इज इक्वल्स टू -Q/4। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? कहा गया बी इज द राइट आंसर। Okay, question is, a small metal ball is suspended in a uniform electric field with the help of insulated thread. If high energy X-ray beam falls on it, then few options are given. The ball will deflect in the direction of electric field. It will deflect opposite to the field. Ball deflect नहीं होगी. Ball will move to infinite. तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या दिया है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्मॉल मेटल बॉल, तो स्मॉल मेटल बॉल भी आ गया है अपने पास। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। Now on it high energy X-ray beam, तो X-ray beam इस पे इंसिडेंट की। यहाँ पे बोला गया है हाई एनर्जी एक्सरे बीम, तो एक्सरे बीम हाई एनर्जी है तो इट इज एबल टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस मेटल स्फीयर। तो ये एक्सरेस इंसिडेंट होने से इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेंगे। तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो ये स्फीयर जाएगा ये डायरेक्शन में। पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा। तो आप देख सकते हो कि स्फीयर विल डिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बहुत आसान है। Which option is correct? Option A, the ball will deflected in the direction of electric field. Option A is right. Next question, 3 infinitely long charge sheets are placed as shown in figure. तो ये देखो पहली वाली प्लेन जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी आपको सोचना यहाँ पे सब पॉजिटिव चार्जेस है। दूसरी प्लेट -2 सिग्मा, यानी यहाँ पर सब माइनस चार्जेस है। तीसरी वाली माइनस ही है तो यहाँ पर भी सब माइनस है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो P पॉइंट पर क्या प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये तीन प्लेन का आएगा, ठीक है। तो पहला प्लेन कैसा है अपना? पॉजिटिव। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द प्लेट, पॉजिटिव है तो अवे, यानी जाएगा नीचे। ओके, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड प्लेट एट पॉइंट P। अब अपनी सेकेंड प्लेट कैसी है? नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर होगा टूवर्ड्स, नेगेटिव तो टूवर्ड्स, वो जाएगा नीचे। एंड लास्ट अपनी प्लेट कैसी है? नेगेटिव। So at point P, electric field due to the third plate which is negative, so electric field is towards. तो पहली प्लेट की वजह से अवे तो नीचे, दूसरी प्लेट की वजह से टूवर्ड्स तो भी नीचे, तीसरी प्लेट की वजह से टूवर्ड्स तो भी नीचे। तो ऑल दिस 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन विच डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन। तो अब आसान है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ER, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं यहां पर, तो E1 प्लस E2 प्लस E3, सेम डायरेक्शन में सीधा एडिशन कर लेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन क्या थी फॉर्मूला? सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0।
प्लस ड्यू टू सेकेंड वन, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है 2 सिग्मा, सो इट इज 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0. थर्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, तो होगा यहाँ पर सिग्मा बाय 2, ये होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0. तो फर्स्ट एंड थर्ड है हाफ, हाफ प्लस हाफ 1, और इन तीनों का एडिशन करोगे तो आंसर आएगा 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. दिस इज द आंसर 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. बट ये तीनों तीन फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, प्लस जेड या माइनस जेड, नीचे. तो अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, वेक्टर E is equal to minus, because it is in negative z direction, 2 sigma by epsilon 0 k cap. This is the final answer. कहाँ गया अपना right option? ये रहा B. B is the right answer. Next question. 6 charges, 3 positive and 3 negative of equal magnitude are be placed at the vertices of a regular hexagon, such that the electric field at the point O is double the electric field, यानी point O पर electric field है 2E, when only one positive charge of same magnitude is placed at the R. तो यहाँ पर बोला गया है कि positive charge is kept at the R. Which of the following arrangement of the charges is possible for P, Q, R, S, T, U? अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि R पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो मैंने R पे रख दिया पॉजिटिव. तो O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू R होगी अवे फ्रॉम द R, सो इट इज E. अब मुझे O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड करनी है 2E डबल, तो मैं U जो है वो नेगेटिव एज्यूम कर लेता हूँ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट O, इट इज टूवर्ड्स द U. दैट्स इट. तो E एंड E, इट इज 2E. इसका मतलब है जो हमें आंसर लाना था 2E, वो हमारा मैच हो चुका है. यानी हमारा जो R है वो पॉजिटिव होगा, U जो है वो नेगेटिव होगा. तो PS एंड QT एक दूसरे की इफेक्ट नलीफाई करने चाहिए. तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास D है, जहां पर P मैं ले रहा हूं नेगेटिव, तो उसके सामने S नेगेटिव है. नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट विल नलीफाइड. Q पॉजिटिव, T पॉजिटिव, तो Q T की इफेक्ट भी नलीफाइड हो जाएगी. तो P पे चार्ज है नेगेटिव, Q पॉजिटिव, R पॉजिटिव, S नेगेटिव, T पॉजिटिव, U नेगेटिव. तो इफेक्ट ऑफ PS एंड इफेक्ट ऑफ QT नलिफाइड, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, बट इफेक्ट ऑफ R एंड U विल रिमेन ऑन एट पॉइंट O एंड विच इज 2E. जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था एट पॉइंट O विच इज डबल, और वो हमें R और U की वजह से मिल रहा है. तो यहाँ पर अपना राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा D. Here question is 3 charges minus Q1 plus Q2 minus Q3 are placed as shown in the figure. Figure देख सकते हो. Find the X component of the force on a minus Q1 is proportional to what? तो ये फिगर को वापस एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. It is X, it is Y minus Q1 plus Q2. Distance between these two is B. तो force on minus Q1 ड्यू टू Q2, तो ऑब्वियस अट्रैक्शन होगा. Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा ये डायरेक्शन के अंदर. इट इज फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड F12. Then after another charge is given here minus Q3 and angle is given theta. So now I extend the y-axis and this angle is theta, so it is also theta.
तो फोर्स ऑन माइनस Q1 ड्यू टू माइनस Q3, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, तो होगा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड। अब ये एंगल थीटा है, ये थीटा की है एडजेसेंट साइड, तो यहाँ पर कंपोनेंट आएगा कॉस, F13 cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर टू F13 cos थीटा ये इट इज F13 sin थीटा। हमें फाइंड करना है Q1 पर फोर्स प्रोपोर्शनल टू, बट x कंपोनेंट लेने हैं, तो x डायरेक्शन में देखो माइनस Q1 पे ये दो फोर्सेस दिख रहे हैं। सो फोर्स ऑन माइनस Q1 F इज इक्वल्स टू F12 प्लस F13 sin थीटा। तो F12 force between 1 and 2 distance is B, so we write here K Q1 Q2 by B square. Force between 1 and 3, the distance is A here, so it is K Q1 Q3 by A square sin theta. So here K Q1 common, so remaining inside is Q2 by B square plus Q3 by A square sin theta. So we have to find proportional, तो constant term निकाल देते, तो F proportional to Q2 by B square plus Q3 by A square sin theta। तो right ऑप्शन कहाँ गया, Q2 by B square ये रहा, Q3 by A square sin theta, तो ऑप्शन B is correct। A charge capital Q is placed at each of opposite corners of a square. A charge small q is placed at each of the other two corners. If the net electric force on a capital Q is 0, then capital Q by small q equal to what? So listen, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें सिचुएशन क्या दी गई है, तो एक स्क्वायर ले लेते हैं, ये ले लिया स्क्वायर। 4 charge particles we have to take capital Q at opposite corners, and for remaining it is small q। अब इनको नाम दे देते हैं कॉर्नर 1 2 3 4। Given here net electric force on capital Q is 0, so here I am taking that capital Q as a third charge, you can take as a first also। Force on a third due to second, positive repel away from the second। Force on the third due to fourth, तो ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा, जाएगा दूर। सो आई राइट हियर एफ। ऐसा क्यों किया, बिकॉज दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये लेते हैं ये, ए बी ये, तो एफ इक्वल टू होगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए स्क्वायर। ये भी क्या होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए स्क्वायर। दो इक्वल वेक्टर्स है, एंगल है 90 डिग्री टू इक्वल वेक्टर, सो रिजल्टेंट होगा 2 and 4 का √2f। तो √2f किसका रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ 2 and 4। ओके, रिजल्टेंट फोर्स 0 कब होगा, जब द फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में कब होगा, जब ये कैपिटल Q जो है ये नेगेटिव होगा। करेक्ट।
So force on third due to first, that I say F dash is equal to formula K, दोनों का चार्ज Q स्क्वायर, डायागोनल डिस्टेंस √2a उसका स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल Q पे दो फोर्सेस, एक √2f है, दूसरा F डैश है, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो ही रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है। सो F डैश इज इक्वल्स टू √2f, F dash is equal to k q square by 2a square √2f, f is equals to we have k capital Q small q by a square, k गया, कैपिटल Q स्क्वायर उड़ गया, a स्क्वायर भी गया, तो आंसर क्या आएगा, कैपिटल Q बाई स्मॉल q इक्वल्स टू 2√2। बट हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये वाला चार्ज माइनस होना चाहिए, तो कैपिटल Q बाई स्मॉल q होगा -2√2। ये हमारा फाइनल आंसर है -2√2। तो ऑप्शन ए इज राइट। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर। सो स्टार्टिंग में दोनों स्फीयर्स एयर में है। सी द सिचुएशन, आइडेंटिकल स्फीयर्स, string having equal length, they having equal charge, repelled by electric force Fe. Both the spheres are in equilibrium. ये यहाँ पर equilibrium में है at an angle 30 degree. That 30 degree I take as a 2 theta. In downward direction the force is mg. अब ये इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियस Fe को कोई बैलेंस कर रहा होगा, mg को भी कोई बैलेंस कर रहा होगा। सो नाउ 2 थीटा का हाफ होगा थीटा। नाउ आई एक्सटेंड द mg, it is theta, so it is also theta forming z, and on a string there is a tension T. So two components of T, adjacent of theta T cos theta and opposite it is T sin theta. तो भैया ये स्फीयर क्यों इक्विलिब्रियम में है, Fe को कौन बैलेंस कर रहा है, T sin theta, mg balanced by T cos theta. तो I write here T sin theta equals to Fe and T cos theta equals to mg. रेशियो ले लेते हैं तो साइन बाई कॉस होगा 10, टी कैंसल, Fe बाई mg. बट स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला कब है, व्हेन चार्ज पार्टिकल्स और दिस टू स्फीयर्स आर इन एयर। अब देखो आप लोगों को थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, MCQ है, थोड़ा सा स्पीड रखना है तो दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। कि यहाँ पर लिखा गया है कि व्हेन दिस टू स्फीयर्स आर immersed in liquid, further the string makes an angle 30 degree with each other when suspended in a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube, the angle remains the same. यानी ये दोनों स्फीयर को उठा के हमने रख दिया लिक्विड के अंदर। अब आपको सोचना है कि लिक्विड के अंदर Fe और mg का क्या होगा। सो फोर्स डिक्रीजेस बाय k टाइम्स। We know that electric force decreases by k times, and liquid में एक और फोर्स लगेगा buoyant force, तो mg replaced by mg minus m0g। ठीक है, इतना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। MCQ सॉल्व कर रहे, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे। तो Fe की जगह Fe by k, लिक्विड है तो फोर्स रिड्यूसेस by k टाइम, एंड इंस्टेड ऑफ mg we take mg minus m0g, where m0g is a buoyant force. So it is in a liquid,
एंड इक्वल टू टेन थीटा, थीटा तो सेम है तो कंपेयर कर सकते थे। एफ ई कैंसल, अब के एम जी माइनस एम जीरो जी इक्वल टू एम जी, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं यहाँ पर, तो के एम जी माइनस एम जीरो जी इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, तो के मास ऑफ स्फीयर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रो वी जी, एम जीरो the mass of liquid which is displaced to rho 0 Vg is equals to mass of sphere rho Vg, V G G G. So now K is equals to, we will get rho upon rho minus rho 0. Rho density of sphere which is given in the question 1.6 upon 1.6 माइनस 0.8 इट इज गिवन। बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन है तो खुद कर लेना, आंसर आएगा 2। दैट्स इट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ लिक्विड इज 2। इसका मतलब ये दोनों स्फीयर्स को जो इस लिक्विड के अंदर इमर्स किया गया है उसका के जो है वो है 2। दिस इज द आंसर। सो अवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है। अ चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 into 10 to the power 4 volt per meter that it neither falls or nor rises. The charge on the drop will be। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर एक चार्ज रखा गया है, चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप। इट इज नाइदर फॉल नॉर राइज। डाउनवर्ड डायरेक्शन एक फोर्स तो हमेशा रहती है mg, और इस पे चार्ज है q, तो देयर should be some other force which balancing the mg, that's why it is neither fall or nor rise. तो obvious force on a charge due to field, it is QE, so that force which is in opposite to mg is QE. So now it is very simple, QE equal to mg, q we have to find is 3 into 10 to the power 4, m is given 9.9, 10 raised to minus 15 and g is 10. So on solving this, students, you will get the answer 3.3 into 10 raised to minus 18 coulomb. So हमारा right answer कहाँ गया? Option A. Next question. 2 point charges plus 8q minus 2q are located at x equal to 0 and x equal to L respectively. The location of a point on x-axis at which the net electric field due to these 2 point charges is 0. हमें फाइंड करना है ये दो चार्जेस की वजह से कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्जेस, यानी एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है। सो बहुत आसान है, थियरी लेक्चर्स के अंदर हमने देख लिया था। फॉर अनलाइक चार्जेस null point exist outside the line joining of two charges। अगर दो अनलाइक चार्जेस है तो नल पॉइंट जो होगा वो आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस होगा एंड नियरर टू स्मॉलर चार्ज होगा। सो सपोज फ्रॉम माइनस टू क्यू इट इज एट डिस्टेंस एल। नाउ दिस डिस्टेंस इज गिवन कैपिटल एल। तो थियरी लेक्चर में हमने देख लिया स्मॉल एल कैसे फाइंड करना है। तो स्मॉल एल इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन अंडर रूट Q1 बाई Q2 माइनस 1। तो हियर एक्स डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, सो इट इज एल। Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज 8, सेकेंड इज 2 माइनस 1, सो इट इज L 8 बाई 2 4, 4 का रूट होगा 2, 2 माइनस होगा 1 तो नीचे बचेगा 1। तो इसका मतलब स्मॉल l इज इक्वल टू कैपिटल L। तो इसका मतलब है नल पॉइंट मिलेगा कैपिटल L डिस्टेंस पर फ्रॉम पॉइंट B। सो फ्रॉम B एट
capital L distance, and from A at ये कैपिटल L, ये भी कैपिटल L, सो इट इज 2L डिस्टेंस। तो देख लेते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। तो कैपिटल L तो नहीं है ऑप्शन में, तो ऑब्वियस 2L, सो आंसर इज गिवन with respect to point A. Next question, a charge capital Q is divided into two parts, small q and capital Q minus small q. If Coulomb repulsion between them when they are separated is to be maximum, then the ratio capital Q by small q should be. देखो इसे हम एक लॉजिक से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया एक कैपिटल क्यू चार्ज है, उसको डिवाइड किया है दो पार्ट में। तो मैं ले लेता हूं कि हमारे पास चार्ज है 10, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। तो 10 के दो पार्ट्स लेने हैं, बट ऐसे दो पार्ट्स लेने हैं कि फोर्स जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है, यानी दोनों पार्ट्स के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शन में Q1 Q2। तो 10 का एक पार्ट मैंने लिया 9, दूसरा लिया 1, 9 + 1 हो जाएगा 10। तो 9 जो है हमारा Q1 है, 1 हमारा Q2 है, तो 9 × 1 होगा 9। उसका दूसरा पार्ट मैं कर रहा हूं 8 इन एंड 2, 8 + 2 10 होगा। इस बार ये 8 है, ये 2 है, तो 8 × 2 16। तो 8 and 2 गिविंग मोर फोर्स कंपेयर टू 9 and 1। देन आफ्टर 7 and 3 तो 21 जो 16 से भी बेटर है। 6 and 4 24 वो 21 से भी बेटर है। अब आपने प्रेडिक्ट कर लिया है कि सर 5 कर दो, तो 5 × 5 25। तो अब ये मैं देखो 9 × 1 8 × 2 7 × 3 6 × 4 5 × 5, तो मैक्सिमम जो है वो हमें 5 पे मिला। यानी 10 के अगर मैं इक्वल दो पार्ट्स करता हूं तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो रहा है। तो इक्वल पार्ट करना है, तो कैपिटल Q के अगर हम दो इक्वल पार्ट करेंगे तो फिर आंसर क्या होना चाहिए। तो कि कैपिटल Q माइनस स्मॉल q हमें रेशियो फाइंड करना है, तो वो होगा हाफ। कैपिटल Q बाय स्मॉल q इक्वल्स टू 1/2। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू Q/2। अगर हम उसे हाफ डिवाइड करेंगे, हाफ, देन द फोर्स इज बिकम्स मैक्सिमम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 4 चार्जेस इक्वल टू -q आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एंड चार्ज स्मॉल q एट इट्स सेंटर। If the system is in equilibrium, what is the value of small q? चलो पहले सिचुएशन देख लेते हैं। क्या है सिचुएशन? एक स्क्वायर, तो स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर पे हर एक वर्टेक्स पर है -q। ओके, सेंटर पे है स्मॉल q, वो बाद में रखते हैं। And now say it is 1 2 3 and 4। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी वन इज 0, तो आई एम टेकिंग रिजल्टेंट फोर्स ऑन थर्ड इज 0। अब थर्ड पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? तो थर्ड पे फोर्स लगाएगा 2 4 and 1। तो सबसे पहले लेते फोर्स ऑन अ थर्ड ड्यू टू सेकेंड, माइनस माइनस रिपेल, तो फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकेंड इट इज अवे इन दिस डायरेक्शन। मैं लिख रहा हूं सिर्फ F। फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 4, माइनस माइनस रिपेल, तो इधर आएगा F। मैंने F क्यों लिखा है? क्योंकि फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 4 का मैग्नीट्यूड सेम है। देख लेते हैं मैग्नीट्यूड K कैपिटल Q²/A²। Q एंड Q है, ये भी होगा K कैपिटल Q²/A²। डिस्टेंस ले लेते हैं A। तो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट वो आएगा ये डायरेक्शन 90 डिग्री। F एंड F इक्वल वेक्टर्स 90 डिग्री, तो आंसर होगा √2F। ओके,
तो रूट 2f इट इज रिजल्ट ऑफ व्हाट एंड व्हाट, रिजल्ट ऑफ 2 and 4। चलो 2 and 4 का कैलकुलेशन हो गया खत्म, अपना ये चार्ज माइनस है। नाउ फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट, तो माइनस माइनस क्या होगा, रिपेल, सो इट विल गो अवे फ्रॉम द फर्स्ट, डायगोनल में अवे ये आएगा, तो आई राइट एफ डैश। सो व्हाट इज एफ डैश, एफ डैश इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होगी, ये डायगोनल है तो ये डिस्टेंस होगा रूट 2a, तो एफ डैश इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर बाई 2a स्क्वेयर ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो 2 and 4 का रिजल्ट हो गया रूट 2f, 1 का आ गया एफ डैश। तब रूट 2f एंड एफ डैश आर इन सेम डायरेक्शन, दिख रहे सब लोग को। नाउ वी प्लेस्ड स्मॉल क्यू, अब प्रेडिक्ट करो स्मॉल क्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इक्विलिब्रियम है तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन थर्ड इज 0। ओके, अगर मैं क्यू माइनस लेता हूं तो फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू माइनस क्यू रिपेल, तो वो जाएगा अवे। अब रूट 2f एफ डैश और ये स्मॉल क्यू का फोर्स सब एक डायरेक्शन में है, तो इक्विलिब्रियम कहां से होगा, तो दैट मीन्स कि जो ये स्मॉल क्यू है स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होगा, फोर्स इज टूवर्ड्स पॉइंट O, ठीक है, दैट आई से एफ डबल डैश। सो व्हाट इज एफ डबल डैश, ड्यू टू स्मॉल क्यू, और उसकी फॉर्मूला क्या होगी देख लो, तो एक है के, एक है कैपिटल क्यू, दूसरा है स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, तो डायगोनल का हाफ, रूट 2a बाई 2, यानी ये होगा a बाई रूट 2, तो a बाई रूट 2 का स्क्वायर। तो अब हमें दिख रहा है एफ डैश रूट 2f आर इन सेम डायरेक्शन, और उसका अपोज कौन कर रहा है, एफ डैश। तो अब कैसे लिखेंगे, एफ डैश प्लस रूट 2f इज इक्वल टू एफ डबल डैश। अब वैल्यूज रखनी एफ डैश, के क्यू स्क्वेयर बाई 2a स्क्वेयर रूट 2f, एफ ये रहा के क्यू स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, देन एफ डबल डैश दिस वन, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए बाई रूट 2 का स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर बाई 2, 2 ले लेते ऊपर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, के क्यू क्यू, ओके, तो रिमेनिंग इज व्हाट हियर, क्यू बाई 2 प्लस root 2q is equal to 2q, correct। Now taking LCM here, तो q plus 2 root 2q divided by 2 is equal to 2q। So final answer 2 नीचे ले लो, तो q is equals to, q यहां से कॉमन निकल जाएगा, तो 1 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इट इज 4। दिस इज द फाइनल आंसर। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, और हमने पहले प्रेडिक्ट किया था हमारा जो स्मॉल क्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो q बाई 4 1 प्लस 2 रूट 2 मिला। ये बहुत आसान है, आंसर मिल जाने के बाद सिर्फ चेक करना है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा, दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर।